हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फंक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic here. It is a common practice to be divided to organization of the corporation and municipalities into the two part. The first is the deliberate and the second is executive part. The corporation council or municipal board or councils consisting of the selected representative of the people constitute the deliberate of part. It act like a legislature. It is a discuss and deliberate of the general municipal policy and the performance. Pass the budget of the urban local body frame board and policy is related to the taxations, arising of source and passing of the service and other aspect of the municipal administration. It is a keep on the eyes and municipal administration and the hold of executive accountable for what is done or not be done. For instance, if water supply is not begun properly at the managed and there is an outbreak of the epidemic, the deliberate of beings criticized and their role of the administration of Suget measuring of improvement. The executive part of the municipal administration is looking after the municipal officer and other is a permanent employees. The all other departmental officer like an engineer, finance or officer, health officer, etc. There is a part of municipal corporation here, a function under here, his here control of supervisions, and in the large corporations such as Delhi or municipal is a Mumbai municipal corporation, the commissioner is usually a senior IS officer. There is the most important here, the Delhi and Mumbai municipal corporation is a commissioner is usually as a senior IS officer. In the municipalities, that executive as an officer hold a similar position of the look after the overall administration of a municipality. There is the most important here. The municipal function as here generally classified into the obligator and the discretionary types. The obligator is compulsory, is a function are those that are municipal bodies must be performed. In this category falls such a function as water supply and constructions and maintenance of the road, street, bridge, subway and the other public work, street lighting, drainage and sewage, garbage collection and the disposal here, and prevention and control of epidemic. Some of the obligators function and public vaccination and the inclusions of maintenance of hospital and dispensaries, including maintenance and the child welfare center and checking food is the adulterations, removal of the slum, supply of electricity, maintenance of the cremations and bureaus ground, and the town planning in the some state. Some of this function may be taken over by state government. The directionary is a function or this type that is a municipal body may be take up to found permit there are given less priorities. Some of the dictionary is a functioning and constitutional and there is a maintenance of the rescue home and the affairs and the housing for the low income groups, organizing a public receptions and provision of the treatment of facility and etc. And their municipal corporation take up to the more function than the municipalities, and there is corporation like a Delhi, Mumbai, Vadodara, Pune, Hyderabad, which are known, and there are various city development activity in such a area as a public transport, public park and open space, including municipal zoo and the even milk and electricity supply. The next here is the financial resource of the urban local body. There is the most important topic, financial resource of the urban local body here. The municipal corporation and municipalities arise their urban resource from is a variety of the source as a provides for in the respective municipal law. There is a urban revenue source are the income for the taxes and fee and the fine and the area from to municipal enterprise like a land, tanks, market, shop, etc. Besides this is the bodies receive a grant from the state. Property tax on the land and buildings is the most important source of income of most urban local body. Other taxes is levied by them are the advertisement and tax, provisional tax and etc. Outside the city still is remain an important source of income of municipalities in the western India. Now they are trend
to about to the abolishing this tax as it is obstruct their free flow of the traffic and the highway. There is also charge fine to the breach of the municipal rule and the regulation from municipal shop and the market and the rest houses. Is a multi-parties is often earn considerable sum of the revenue. It is a general practice for the state to give us grant to their municipal body to improve their revenue position. A state grant in the aid may be on ad hoc basis or it is a can be on the basis of content the municipal like size is a population, slum concentration, location of the town and etc. The next year, property tax, water tax for water supply. There is the most important. There are some taxes are rated collected by the urban body here. A property tax, water tax for water supply, and sewaging tax, fire tax, tax on the animal and the vehicles, rate of the tax, duty on transfer property, and express duty on content items brought into the cities, and education cess tax and professional tax. Some other sources of the income are a fine and the fees such as a fee on the Tehbal Jari and the Tehla Khad is a chaptra and the license fees on the is a cycle, rickshaw and the bicycle etc. Rent for the municipal shop and the fine imposed by the violation of the municipal by the law. यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारे शहरी स्थानीय निकाय के कार्य। देखिए इसका कार्य प्रणाली के विषय में जानना भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। किसी नगर और निगम निकाय के संगठन में दो भाग हो सकते हैं, एक विचारक और एक कार्यकारी भाग में विभाजित किया करने का सामान्य परंपरा रही है। निगम जो है परिषद अथवा नगर पालिका बोर्ड का परिषद जिसमें लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी ये आपके द्वारा ही चुने गए व्यक्ति होते हैं। वो विचारक अथवा विचार विमर्श करने वाला भाग होता है। यह किसी विधायक की तरह काम भी करता है। यह सामान्य नगर निगम नीतियों और निष्पादन पर चर्चा और बहस भी करता है। शहरी स्थानीय निकाय का जो है बजट पारित करता है और टैक्स लगाने से संबंधित संसाधन उत्पन्न करने, सेवाओं की दरें निश्चित करने और नगर प्रशासन के अन्य पहलुओं पर व्यापक नीति भी बनाया जाता है। यह नगर पालिका के प्रशासन पर निगाह भी रखता है और कार्यपालिका को उसके द्वारा किए गए अथवा न किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि जल आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं की जा रही है अथवा यदि कोई संक्रमण रोग फैलता है तो ये विचारक भाग अथवा इस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधित्व शासन की जो है भूमिका की आलोचना भी करता है और सुधार के लिए उपाय भी बताता है और नगर पालिका के प्रशासन के कार्यकारी भाग की देखभाल अधिकार एवं अन्य स्थायी कर्मचारी भी करते हैं। निगमों में निगम युक्ति कार्यकाली अध्यक्ष होता है तथा अन्य सभी विभागीय अधिकारी जैसे अभियंता, वित्तीय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी इत्यादि इसके नियंत्रण और निरीक्षण में ही कार्य करते हैं। दिल्ली अथवा मुंबई जैसे बड़े नगर निगमों के आयुक्त प्रायः IAS अधिकारी होते हैं। यानी अगर दिल्ली देखा जाए और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जो होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो नियंत्रण करता है वो जो है वरिष्ठ IPS अफसर होता है जो पूरे इसके कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी की स्थिति भी इसी प्रकार की होती है और वह नगर संस्था के पूरे प्रशासन को देख रेख करती है और इसी के जिम्मा सारे जो है प्रक्रियाएं होती है। नगर पालिकाओं कार्य के प्रायः अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में वर्गीकृत किया जाता है। अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें नगर पालिकाओं के अवश्य करना चाहिए। इन श्रेणियों में जल आपूर्ति, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, पानी निकासी और सीवर कूड़ा इकट्ठा करना, इसका निपटान, संक्रमण रोगों को रोकथाम और नियंत्रण जैसे कार्य भी आते हैं। कुछ अन्य अनिवार्य कार्य में जन टीकाकरण, प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र सहित अस्पताल और दवाखाने की देखभाल, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच भी करना होता है। कहते हैं गंदी बस्तियों की हटाना, बिजली की आपूर्ति, शमशान और कब्रिस्तान की देखभाल तथा नगर योजना आदि सम्मिलित है। कुछ राज्यों में इस कार्यों में से कुछ राज्य सरकार भी अपने पास ले सकती है। कहते हैं इच्छुक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें नगर पालिका अपने हाथ में ले सकती है यदि कोष उपलब्ध हो। इन्हें कम प्राथमिक भी दी जाती है। उधर गृह और अनाथालय, कम आय वर्ग के लिए घर बनाना, नगरीय अभिनंदन आयोजित करना यानी अभिनंदन आयोजित करना, इलाज की सुविधाओं का प्रावधान करना इत्यादि कुछ ऐच्छिक कार्य इसी के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक कार्य करते हैं और दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, पुणे, हैदराबाद जैसे नगर निगम अपने जो है विभाग नगर विकास
कर्मों जैसे सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक पार्क, खुले स्थान सहित चिड़ियाघर और दूध तथा बिजली आपूर्ति तक के लिए जाने सब जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय संसाधन। देखिए इनका पैसा कहाँ से आता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि ये लोग नहीं कमाते हैं, ना मेहनत करते हैं, ये आपसे ही वसूला करते हैं। आपने जितना भी आपने इलेक्शन देखा होगा, वहाँ पर आजकल जो प्रावधान बन गई है फ्री करने की, तो उसमें वो लोग अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं, आपके ही चीज़ों से पैसे देते हैं। ठीक है, आपके ही जेब से पैसा निकलवाते हैं और आपको झूठे फ्री का जो है आपको झांसा देते हैं। आप सोचिएगा कैसे, तो देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि नगर निगम और नगर पालिका कानून में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनेक प्रकार के स्रोतों से अपने जो है संसाधन जुटाते हैं। उनके अपने राजस्व साधनों में कर, शुल्क और जुर्माने, नगर पालिका को धन जैसे भूमि, तालाब, बाजार, दुकान इत्यादि से होने वाले आय सम्मिलित है। यानी ये सब पे टैक्स चढ़ा देते हैं। जब ये कोई चीज़ फ्री करते हैं, उनको पैसे कमते हैं, तो वो हर चीज़ों पे टैक्स चढ़ा देते हैं। चाहे एक कहते हैं ना पेंसिल खरीदो उस पर भी टैक्स होता है, एक आप माचिस के तिल्ली खरीदो उस पर भी आपको टैक्स लगा हुआ मिलेगा। यानी वो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, सब उनके टैक्स के अंतर्गत आता है। कहते हैं जो फ्री उन्होंने किया है, क्या वो अपने जेब से थोड़ी भरना है, वो तो आपके ही जेब से सब निकाल निकाल के भरेंगे। तो वही कह रहा हूँ ना कि जो ज़रूरत की वस्तुएं होंगी वो महंगी से महंगी होती चली जाएगी, और आप यहाँ पर जो झूठे आश्वासन में जो फ्री के लालच दे दे के सरकार आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, आप उसी में बैठे रह जाओगे और इससे भारत का विकास नहीं होगा। भारत का विकास कभी हो ही भी नहीं सकता। मैंने अभी बहुत जगह देखा है जहाँ पर बिजली फ्री की गई है, वहाँ पर लोग धड़ल्ले से दिन रात बिजली जलाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने इवन ये भी देखा है कि जहाँ पानी फ्री किया है वहाँ पानी जो है ऐसे ही बह रहा है और किसी राज्य में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये सारे कुछ हमारे नेचर के लिए खराब होगा और हमारे देश के लिए भी ये कहते हैं ये अच्छा संकेत नहीं है। कहते हैं हम लोग तो लालच के जो है चक्रव्यूह में फंस रहे हैं और सरकार को जिता दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार आपकी भलाई नहीं कर सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि कहते हैं फ्री का लालच दे के जो है पक्षियों को फंसाया जाता है। आपने देखा है चिड़ियों को हम दाना दे देते हैं कि वो हमारे जाल में फंस जाए, ऐसे ही मंत्री लोग आपको दाने देते रहते हैं और आप लोग लालच की जो है कैटेगरी में फंसते चले जाते हो, और इसी वजह से आपके खाने पीने की वस्तु को जो है इतना महंगाई छू रहा है। जो आप दुकान में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपका हालत ख़राब हो जाता है। आप सोचते हो कि क्या खरीदूँ और क्या ना खरीदूँ, इसका कारण आप स्वयं ही हो। कहते हैं जब तक ऐसे गवर्नमेंटों को आप त्यागोगे नहीं तब तक आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चल भी नहीं सकता है। और ये लालच की कैटेगरी सिर्फ एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आज सब गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा क्या जाएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। हम तो लालच के पिटारा खोलेंगे और उन्हीं से फिर दोबारा पैसा भी वसूलेंगे, हमारा कुछ नहीं जाता है। यही प्रावधान सभी मंत्रियों ने किया है। आप देखोगे कोई अच्छे से अच्छे पार्टी भी आपको कुछ ना कुछ फ्री देने के लालच आपको दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग जो है थोड़ा सा जो है फ्री के बहुत ही शौकीन है और ये शौकीन उनको जो है ले डूबेगा। जैसे पहले आपको पता है ना कि राजगद्दी की लालसा थी बड़े बड़े जो है महाराजा राजा को, जो आपस में लड़वा दी और अंग्रेज ने राज कर लिया। तो वही नीति आज जो है मंत्री लोग आप लोगों के लिए करते हैं और वो अपना जो है मकसद पूरा भी कर लेते हैं। आगे यही बात दर्शाया गया है कि भूमि और भवनों पर जो है संपत्ति पर अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत रहता है। इसके द्वारा लगाए गए अन्य करों में विज्ञापन कर, व्यवसायिक कर इत्यादि। देखिए विज्ञापन पे भी कर लगाए जाते हैं, व्यवसायिक पर भी कर लगाए जाते हैं। पश्चिमी भारत में चुंगी अभी भी नगर पालिकाओं के आय का मुख्य स्रोत। देखिए पश्चिम भारत में चुंगी के रूप में जो है नगर पालिका पैसा वसूलती है आपसे। जब इन टैक्स को समाप्त करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे जो निर्बाध यातायात के चलन में बाधा आती है। नगर पालिका के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना भी इसके अंतर्गत आता है। नगर पालिका की दुकान, बाजार और विश्राम गृह से नगर पालिका को प्राय अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। देखिए ये जो आपके लिए विश्राम गृह ठंडियों के समय लगाए जाते हैं ना, तो ये फ्री के नहीं होते हैं, इससे भी इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। दुकानें, बाजार, विश्राम गृहों से जो है नगर पालिका को प्राय अच्छे राजस्व प्राप्त होते हैं। राज्य अपनी नगर निकायों को उनकी राजस्व स्थिति को सुधारने के लिए अनुदान देते हैं। राज्य का अनुदान सहायता तथ्य आधार पर हो सकती है अथवा यह निश्चित सिद्धांतों के आधार पर भी हो सकती है, जैसे जनसंख्या के आधार पर हो सकता है, गंदी वस्तु की संख्या, कस्बों की स्थिति इत्यादि पे। शहरी निकाय द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुछ कर एवं शुल्क संबंधी जैसे संपत्ति कर पर भी लगाई जाती है, जल पर भी कर लगाई जाती है, सीवर कर भी होता है, अग्नि कर भी होता है, वाहनों एवं पशुओं पर कर भी होता है,
थिएटर पे भी कर लगाई जाती है, संपत्ति हस्तांतरण पर भी कर लगाया जाता है और शहर में लगाई गई कुछ वस्तुएं पर चुंगी, शिक्षा और व्यवसाय कर। देखिए आपने यहाँ देखा ना, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर उन्होंने कर न लगाया हो, सब कर के अंतर्गत आता है और ये कर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई इसी वजह से जो है बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कोई सब्जी साग जो है दूसरे राज्य से आ रहा था तो उसका ट्रांसपोर्ट सस्ता कम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पेट्रोल डीजल इसके रेट बढ़ा दिया। इन्होंने रोड जो है जो टोल टैक्स होती है उसको भी बढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे, जो सब्जी यहाँ पर पहुँचेगा वो तो बहुत महंगी कॉस्ट पे होगा ना, क्योंकि जो बंदा गाड़ी चला रहा था अब थोड़ी है कि 1,000 में वो मान जाएगा, आप तो उसको दुगना लेगा, उस बंदे से 2,000 लेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर चढ़ गई, आपके आवश्यक वस्तुओं पे चढ़ गई। तो यही बात तिरपान स्टडी सेंटर जो है सदैव इस बात को उठाता है कि आप लोग समझदार बनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो लालच नहीं देता हो, सिर्फ आप लोगों की भलाई के कार्य में अग्रसर हो। कहते हैं मंत्री लोग ये भी बात आपके समक्ष करते हैं कि जो भी मंत्री चुना जाता है उनके लिए जो है पानी फ्री होता है, घर फ्री होता है, बिजली फ्री होता है, तो हम जनता को क्यों नहीं दे दे। अरे भाई, जब आपको ये चीज़ें जनता को नहीं चाहिए, जनता मेहनत करना जानती है, आप तो उन बड़े बड़े मंत्रियों के ना, अगर आपके पास क्षमता है तो उनको बंद करवा दीजिए सारे कुछ, क्योंकि उनको ऐसा फ्री देकर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कहते हैं उनको अच्छा खासा तनख्वाह भी होता है, प्लस उनको अलायंस भी दी जाती है इतने कुछ, तो उसको बंद करवा दो ना। जनता को फ्री की लालच क्यों दे रहे हो। जनता समझदार है, जनता को ये बात पता है कि कहते हैं ना, मुफ्त की चीज़ों तो जब हजम भी नहीं होता है। और जनता जो हमारे भारत देश का है वो मेहनत करना जानती है और समझती है कि मेहनत का गुण ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ना, बैठे बैठे या सोए सोए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर बंद करवाना है तो जनता को फ्री ना करके उन व्यक्तियों को फ्री करवाइए जो आपके विभाग में मंत्री बने हुए हैं, उनको सब कुछ बंद करवाइए और कहिए कि आप अपने तनख्वाह से आप अपने लगाइए और तनख्वाह से अपना जीवन यापन कीजिए। तो ये आपके मानूंगा कि रूल रेगुलेशन आपका अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि हम तो भाई मंत्रियों को फ्री कर रखे हैं तो हम जनता को फ्री कर देंगे। तो जनता कहते हैं, जनता एक कहते हैं 5 उंगली के बराबर नहीं होता है। कोई व्यक्ति समझदार होता है जो लाइट 2 मिनट में बंद कर देता है, कोई होता है जो रात भर चूल्हा छोड़ देता है। तो खुला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, फ्री का है ना। तो फ्री तो बहुत होती है। आप सोचते होंगे कि भाई 300 यूनिट, अगर एक इलेक्ट्रीशियन से कैलकुलेशन करवाओगे तो 300 यूनिट एक आम गरीबों के लिए बहुत होती है, इवन कि मिडिल क्लास के लिए बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि 300 यूनिट बहुत बड़ी कैटेगरी में आती है। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप 300 जो है यूनिट के बारे में जान सकते हो। आजकल आपको यूट्यूब पे हर जगह इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, और मैं क्या समझाऊं 300 यूनिट के बारे में या 200 यूनिट के बारे में, बहुत बड़ा होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। आप मुश्किल से अगर यूज़ करते होगे ना, एक साधारण क्लास में अगर 3-4 बल्ब 2-3 बल्ब भी जला रहे होगे, पंखा भी चला रहे होगे ना, तो मुश्किल से आपका 100 यूनिट ही खर्च हो रहा होता है। तो सब सोचिए 300 यूनिट कितना बड़ा जो है लोग प्रोसेसिंग दे रहे हैं। ये तो सभी लोगों को फ्री करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए भी है और हमारे देश की भलाई के लिए भी ज़रूरी है। और इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और जो टॉपिक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखना मत भूलना अगला टॉपिक, ठीक है। इसके जो अगला पार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, समझदारी वाली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये वीडियो का जो है 2 बातें जरूर ध्यान रखना है। एक तो शेयर करने की बात जो है ज़रूरी है कि दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो पहुंचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करके रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे तो आपको पहले वो वीडियो दिखेंगे जो पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद है। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखने में ही भलाई है। सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास चैनल रहेगा, और चैनल पे आपको पता है कि वीडियो का ऑप्शन आता है जहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपके जो है मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त होगी।